आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। किसानों का शंभू बॉर्डर पर 6 दिन से धरना चल रहा है। ऐसे में किसान जहां वार्ता से नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, वहीं किसान अपनी अपनी तैयारी भी करते दिख रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने स्पष्ट किया कि वो दबने वाले नहीं हैं, इसलिए सरकार उन्हें हल्के में ना ले, वे दिल्ली कूच हर हाल में करेंगे। किसानों को धरने पर लगातार समर्थन मिल रहा है। वहीं अब निहंग सिंह व महिलाएं लगातार धरने को बल दे रही हैं। निहंग सिंह भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार किसानों की मांगे पूरी करे, अन्यथा किसान दिल्ली कूच अवश्य करेंगे। चलिए आप भी देखिए हमारे साथ इस दृश्य की कुछ झलकियां और साथ ही सुनिए कि इन सब ने इस विषय में और क्या कहा। दो सरकारां दी गल कीती है ते दोवां सरकारां नूं समझो, एक दा दोस्तों धक्के नाल लैंदे आ जमीनां ते दूजा प्यार नाल लैंदे आ। कहंदे जदों गुड़ कट्टिया मारदा ना ते फिर जहर देण दी लोड़ नहीं। मैं कहना फिੱਟੇ ਮੂੰਹ 10 ਲੱਖ रुपया किसी दल पंथ तो मंग के ना दिखाओ। वो थोड़े 84 भी शहीद हो गए, थोड़े 47 भी शहीद होए, 84 भी शहीद होए, थोड़े नौजवान अज नशे के टीके ला के शहीद होई जाते आ। कोई कीता इन्हां ने? इन्हां ने नहीं करना बाई जी। ये तो आपां नूं नौजवानों नूं सोचना पैना। इन्हां दा खड़ा छड्डो, इन्हां नूं कहो भाई जी आओ सवेरे घरां नूं कहो असीं तां चलदे आ भाई, तुहानूं सारा कुछ ने लड़ो। ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਖੜੇ ਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਮਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ। ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੇ ਅੱਜ 1200 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਇਆ, ਖੁਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਤਿੰਨ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਪੈਣਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਾ ਪਾਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਆਲਮੀਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਦਲਾ ਪਾਥਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ। ਕਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ, ਐਵੇਂ ਪਤਨਾ ਮਰਵਾਓ, ਐਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਐਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਨ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਾਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਲੀ ਧਰਮ ਜੀ ਆਉਣ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਲੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਸੀ, 2 ਹੱਥ ਚ ਚਮਕਾਉਣ ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਾ ਚ ਫੇਰ ਕਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਗੋਲੀ, AK-47 ਦੀ ਗੋਲੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਉਣ ਚਾਹੇ ਗਾਉਂ ਟੈਂਕ ਚਲਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਮੁਕਾਇਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਰਨਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 70,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, 50,000 40,000 ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਲੇ 17 ਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ, 2 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਗੱਲ MSP ਦੀ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਝਾੜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਹੋਣੀ, ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਰੀ ਲਾਣ ਦਾ ਕਰਨੇ ਹੈ।
मौका मिला कि आप सोचांगे टका के पर एक गल याद रखियो गल्लां बहुत तौड़ियां सी हुण दोवें सरकारां नूं चुभणगीਆਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ छोटा आज शंभू टोल प्लाजा ते पहुंचे हो की कहना चाहोगे इस बारे बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा उधरों खट्टड़ की मगर तो मोदी सरकार ही आ सेंट्रल सरकार वो मिट्टी चों असी तुर के आए हैं अज भी जो दस्त थल्लों उड़दा ना वो तुहाडी स्किन नूं लूंदा वो तुहानूं चढ़दा और अखां नूं पैंदा और इत्थे इहो जिहे इन्हां ने इलैक्ट्रॉनिक औजार लाए आ अखां ते असर पाउण नूं ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋਵੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏਕੇ ਚ ਰਹੋ ਪਿਆਰ ਚ ਰਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਰਹੋ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਕਸ ਗਲਤ ਜਾਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਏ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੜੋ ਖੜੋ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਥੋੜੀ ਆ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਉਦਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ ਤੇ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹੋ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਆਈ ਸੀ ਕਈ ਵੀਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹੀਆ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੋਈ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਵੇ मैम हम खेड़ी तो आए थे जिला साडा रोपड़ है बाकी असि हुण अज जो मीटिंग चल रही है उन्होंने निर्देशों ते ही चलांगे जो सानू इत्थे रुकण नहीं कहणगे जो उन्हां दे आदेश होंगे उन्हां दे अकॉर्डिंग चलांगे जी हम 3 दिन से लगातार आ रहे हैं रात को हम वापस होते हैं सुबह आते हैं और शाम तक यही रुकते हैं जी आज जो वार्ता होने जा रही है हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उसमें किसानों के लिए कुछ लेकर आए और अगर पिछले दौर की वार्ताओं जैसी वार्ता रहेगी तो उसमें हमारे किसान आगू ये तय करेंगे कि हमने किस तरीके से दिल्ली जाना है। देखो जैसे मैं बता चुका हूँ कि हम उम्मीद करते हैं सरकार से वो लेकर आए क्योंकि ये इतने किसान अपना घर बार छोड़ के आए हैं अपना काम धंधा छोड़ के आए हैं इनको सरकारें बनाई जाती हैं लोक भलाई के लिए और ये लोक भलाई का कार्य है। हम चाहते हैं कि सरकार सुहृद हृदय से अच्छा सोच लेकर हमारे किसान साथियों से बात करे और अगर सरकार इसमें सकारात्मक रहती है तो हम यहीं से घर को चल ले पाएंगे। अगर इसमें पिछली मीटिंगों की तरह कुछ नहीं रहता तो जैसा हमारे किसान अब बोलेंगे अगर दिल्ली जाने के लिए वो आदेश करेंगे तो बैरिकेड तोड़कर हर हालत में दिल्ली जाएंगे ऐसा प्रोग्राम है। बाकी आदेश होगा किसान लीडरों का और आपके माध्यम से मैं सभी युवाओं से ये विनती भी करना चाहूंगा कि इस तरीके से जाना है किसी को कोई नफा नुकसान ना हो क्योंकि हमारे को सरकार की नीतियां कोई बहुत अच्छी लग नहीं रही जैसे हमने पिछला रवैया देखा है। सरकार किस तरीके के प्रोपोगंडे कर रही है इस आंदोलन को फेल करने के लिए और आगे उसने और क्या प्रोपोगंडे कर रखे हैं वो तो समय बताएगा। इसलिए हमारे को बहुत सुचेत रहने की जरूरत है। हो सकता है कोई आगजनी करके हमारे नाम लगा दे हो सकता है आप कुछ तोड़ फोड़ करके हमारे नाम लगा दे जैसे सरकार ने नोटिस लगा रखे हैं कि अगर कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है तो जो आपकी प्रॉपर्टी की कुर्की की जाएगी। तो सरकार किसी हद तक भी जा सकती है इस आंदोलन को फेल करने के लिए। मैं तो ये अपील करना चाहूंगा कि आंदोलन शांतमय ढंग से होता है और अपील है नौजवानों से कि शांतमय ढंग से हमने अपना ये आंदोलन लड़ना है दिल्ली जाना है और जरूर जाना है क्योंकि हमारी बनाई हुई सरकार दिल्ली में बैठी है वो यहाँ से हमारी बात सुन नहीं रही। अगर वो दिल्ली जाकर हमारी बात सुनना चाहती है अभी हम शांतमय ढंग से दिल्ली जाकर अपनी बात सुनाएंगे। सर नारायणगढ़ हरियाणा अम्बाला से हूँ। देखिए
जब बेदर्द हो हाकिम तो फरियाद क्या करनी, आया गया प्रदेश तो उसकी बात क्या करनी। हरियाणा के और केंद्र सरकार के ये हालात हैं कि जो हाकिम है, जो जिम्मेवार लोग है, चाहे देश का प्रधानमंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो बेदर्द हाकिम है। अपने धरती पुत्र कमेरे किसान की 80% आबादी इस देश की जो है किसान मजदूर, उसकी सुनवाई नहीं कर रहे। उसको ऐसे अपना खेत खलिहान छोड़ के खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ रहा है और सरकार उनकी सुनवाई तो दूर की बात, उनके सामने गन के बैरल देकर उन्हीं के बेटों को जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, सेना के हैं, उनको खड़ा करने का काम करती है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले घेरने का काम करती है, मानवीय जो हक हैं, अधिकार हैं, उनका उल्लंघन करती है। ऐसे में क्या करे किसान? किसान की मांग क्या है? कोई नाजायज है? जो प्रधानमंत्री है देश का मोदी, जब वो मुख्यमंत्री होता था, मुख्यमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को। वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गया, उसके टेबल पर पत्र पड़ा 2011 का। जिम्मेदार किसान का तो कहना भी मुख्यमंत्री मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी बात सुन ले, यही जिम्मेदार है कि किसानों की मांग है। वो क्या मांग है भाई? हमारी फसल के रेट उस हिसाब से तय कर दे जो तन्ने कमेटी बनाई है, जो सरकार की बनाई कमेटी थी, राष्ट्रीय किसान आयोग जिन्होंने बोला, या मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, उसके हिसाब से हमारी कीमत तय कर दे। हमनु कीमत पूरी नहीं मिली, कर्जइएगे, कर्जमंद है भाई, हमारा कर्ज माफ कर दे। तीसरा, हम जमीन के मालिक है भाई, जमीन ना की लूट ना करा कानूनी तरीके से, या तो किसान की मर्जी का मुआवजा दे दे, और या फिर अगर वो कीमत किसान को पसंद नहीं, जितना सरकार खरीदा उसकी जमीन ना खरीदा। भी दो काम में से एक काम कर देंगे। तीन मुख्य मांगा, लक्ष्मीपुर खीरी का इंसाफ मांगा। इस देश में कानून का शासन नहीं, भी आप सरेआम प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर जीप चढ़ा दें और उनको इंसाफ न मिले। ऐसा तो हमने कभी चीन के बारे में सुना था कि वहां प्रदर्शन कर रहे थे लोग, वहां की सरकार ने टैंक चढ़ा दी थी। अब हरियाणा की सरकार हो, केंद्र की मोदी की सरकार हो, बस यही कसर रह रही भी यहाँ किसान आंदोलनकारी हक अधिकार की सच की लड़ाई लड़ने वाले हम सारे इकट्ठे रहे, एक गोला घेर का काम निबेड़ दे, वही रह जाएंगे देश में। एक तरह के लोग आजादी मांगने वाले, हक मांगने वाले, में देश में रहने के ही नहीं है, बस यह कसर सरकार की रह रही। और क्या बात करें, क्या सरकार के बारे में करा और क्या नीतियां के बारे में कराएं, तो किसान मजदूर विरोधी जो सारा तंत्र है उसके खिलाफ आवाज है किसान की, जिसने दबे रहे हैं। देखिए, बातचीत जो है वो जारी रहनी चाहिए, क्योंकि बातचीत से आड़ निकलता है। दुनिया की कितनी बड़ी लड़ाई हुई, कितना बड़ा संघर्ष होया, लास्ट में जाकर बातचीत से ही समस्या हल हुई। एक बात। दूसरी बात, बातचीत क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर सरकार की तरफ से जब तक कोई आश्वासन है, कुछ आशा है, बातचीत जारी रखनी चाहिए। फिर सरकार कहेगी कि हम तो बात कराते दे थे, किसान जिम्मेदार, इनके नेता नहीं माने तो लड़ाई लड़ना चाह सरकार से। भाई जब तक सरकार बात कर रही, कोई आशा की किरण नजर आवा, बात करांगे, नहीं तो पहले ही खालिस्तान नहीं बता रहे हैं। बता, हक मांगना, सच की लड़ाई लड़ना, अपनी फसल का मोल मांगना, अपनी जमीन की लूट रोकना, कर्जे से मुक्ति लेना, आत्महत्या करा किसान मजदूर, ये खालिस्तान नहीं हुआ। अगर ये भी खालिस्तान नहीं, मैं आपके हिसाब से कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से, भाई 2014 से पहले ने बीजेपी वाले है ना कपड़े निकाल का ये मांगा करेगा थे, जो मांगा जिम्मेदार कर रहे 2014 से पहले, फिर ने भी सारे खालिस्तानी थे। ये कौन सा पैरामीटर है? किसान हक मांगा खालिस्तानी, कोई मांगा चीन की फंडिंग, कोई मांगा अगर वो खिलाड़ी इंसाफ मांगे जाटा की छोकरियां, पैडल लेकर आवा दी मोदी जी साथ फोटो करवा देंगे, हमारी छोकरियां देश का नाम रोशन कर दिया। ये बांटने की नीति सरकार बंद करे। लेकिन जो वार्ता की आपने बात करी, बातचीत कर रही है, जब तक बातचीत चल रही है, ये नजर आवा भी कुछ मिलेगा तो बातचीत, तो हम बातचीत से किसान, कोई भी किसान आगू नेता ने कभी नहीं कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ऐसे ही बातचीत टालने मटोलने के लिए कर रहे, तो फिर वो तो आपको पता ही है कि उसके परिणाम भी सामने आ जाएंगे। बिल्कुल आपका जायज सवाल है। एक बात पूछा, हरियाणा में इंटरनेट बंद है, लोग परेशान आ, भाई किसाना ने करया। हरियाणा के रास्ते रोड ब्लॉक आ, भाई किसाना ने करे। हरियाणा में कहा आरसी बंद, आरसी कैंसिल कर देंगे ट्रैक्टर की, और कहा पासपोर्ट रद्द कर देंगे, भाई वो किसान कर रहे, जानबूझकर हरियाणा की जनता को परेशान कर रहा। हरियाणा के किसानों की आवाज दबा रहा कौन? मुख्यमंत्री खट्टर और दुष्यंत चौटाला, जो खुद ने देवीलाल का पोता बतावा। भाई देवीलाल तो ऐसा नहीं था, हरियाणा के तो हालात बुरे, कश्मीर बन गया हरियाणा, तो कश्मीर ऐसे साहब ने कश्मीर का सुना था भी 6 महीने लोग साल पूरे कश्मीर में बंदी बनाकर रखे, खुली जेल बना दिया हरियाणा, तो इन्हें कश्मीर बना दिया। हरियाणा की तो हालत बुरी है। हरियाणा के लोगों को भी ये समझना कि उनकी आजादी पे हमला है। आज नहीं बोले तो ये आजादी आगे आज ट्रैक्टर आंदोलन में ले जाने से रोक रहे, कल भाई आप कहीं तीज त्योहार पा कहीं लेकर जाएंगे ट्रैक्टर, उस पर पाबंदी लाएंगे, तो हरियाणा के लोगों को भी सोचना पड़ेगा।
ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।